India has sent two planes, and we really appreciate the sincere and timely help of India. صرف ڈیولپنگ کنٹریز جو ہیں جو خاص کر بالخصوص مسلمان ملک ہی یہ کیوں گاجر مولی کی طرح مر رہے ہیں دنیا میں؟ ان کے پاس کوئی ایسا سسٹم نہیں تھا کہ یہ ارتھ کوئک کو پہلے پریڈکٹ کر سکتے؟ ترکی کے اندر زلزلہ آیا اور 7.9 ریٹنگ کا جو ہے اس نے کافی ترکی میں تباہ کاریاں کی. اس میں دیکھنے میں یہ ہے ہماری نیبر کنٹری بھارت کی طرف سے جو ہے ان کی اسسٹنس کے طور پہ ایک میڈیکل ٹیم جو ہے وہ ترکی روانہ کی گئی ہے، جبکہ میڈیسنز وغیرہ بھی جو ہے وہ ترکی بھیجی جا رہی ہیں. اگر دیکھا جائے تو پاکستانی گورنمنٹ کی طرف سے اس طرح کی کوئی آفیشیل سٹیٹمنٹ نہیں آئی گے، لیکن ساتھ ساتھ پاکستان اور بھارت کی طرف سے بھی ریسکیو ٹیمز جو ہیں وہ پہنچ گئی ہیں، اور امید یہی کی جا رہی ہے کہ وہاں پر ایک ہاسپٹل بنایا جائے گا. اور The confirmed death toll is 3,432. Injured 21,103, so more than 21,000. And almost 6,000 building was collapsed. 5,775 exactly. All know very well, India is among these foreign search and rescue teams. Early yesterday, just a few later than the first earthquake, Indian National Disaster Response Force held a coordination meeting upon instruction Prime Minister Mr. Narendra Modi ji. And later, I also participating at the meeting at the Ministry of External Affairs with NDRF members. And yesterday, India sent a plane, a carrier to Turkey, C-17 type, carrying more than 50 search and rescue members, experts, including some search and rescue dogs and some equipments. This plane arrived early in the morning in Adana, and the Indian team has started their rescue operations already in Turkey. And also early this morning, the second plane also went to Turkey. I think it's still in the air, but we expect this plane also to land before the evening. This plane has also more than 50 rescue experts and some medical equipment. So altogether, India has sent two planes, and we really appreciate the sincere and timely help of India. It is timely because, as I said, the first 48 hours up to 72 hours are very important for rescue operations, and Indian experts, search and rescue experts, are now in the field. So thank you very much. That's what I want to tell you very shortly. کا سب سے بڑا زلزلہ کہا جائے یا کیا کہا جائے، اور مڈل ایسٹ کو اس نے ایک سرے سے لے کر دوسرے سرے تک ہلا کے رکھ دیا، اور ہزاروں کی تعداد میں اموات کہی جا رہی. تو اس پہ آپ کیا کامنٹ کرنا چاہیں؟ دیکھیں، اس پہ سب سے پہلے تو میں دعا کرنا چاہوں گا کہ جو لوگ اس وقت مشکلات میں ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صبر دے کو. لیکن ساتھ ایک دکھ کا یہ بھی کروں گا، مجھے دکھ بھی ہے اس چیز کا کہ آج تک یہ صرف ڈیولپنگ کنٹریز جو ہیں جو خاص کر بالخصوص مسلمان ملک ہی یہ کیوں گاجر مولی کی طرح مر رہے ہیں دنیا میں؟ ان کے پاس کوئی ایسا سسٹم نہیں تھا کہ یہ ارتھ کوئک کو پہلے پریڈکٹ کر سکتے. ترکی اور سیریا اگر دیکھا جائے تو کہیں ایک سائڈ پہ تو ترکی کہتے ہیں جی وہ بڑی سائنٹیفک اچیومنٹس، ڈرون بنا رہا ہے. خوفناک قسم کا ارتھکویک آیا ہے ٹرکی میں، اور ابھی تک یہ بتایا جا رہا ہے کہ 4,800 لوگ جو ہیں ان کی جانیں گئی ہیں، یعنی کہ 4,800 لوگ ابھی تک اپنی جان کھو چکے ہیں، اور ساتھ ہی تقریباً 5,000 کے قریب بلڈنگز بتائی جا رہی ہیں جو گر گئی ہیں. اب ظاہر ہے کہ اس کے نیچے بھی بے شمار لوگ ہوں گے جن کو نکالنے کے لیے کام کیا جا رہا ہے. ریسکیو کی ٹیم نہ صرف یہ کہ پوری دنیا سے ٹرکی کی طرف لوگ جا رہے ہیں، اس میں بہت سی کنٹریز نے ان کو
फंड्स की भी ऑफर की है और कहा है कि वो उनकी मदद करेंगे। लेकिन साथ साथ पाकिस्तान और भारत की तरफ से भी रेस्क्यू टीम्स जो हैं वो पहुंच गई हैं और उम्मीद यही की जा रही है कि वहां पर एक हॉस्पिटल बनाया जाएगा और पाकिस्तान की तरफ से भी एक छोटा हॉस्पिटल जो है उसको सेटअप वो लगाया जाएगा और यहाँ से डॉक्टर्स और नर्सेज गई हैं और भारत की तरफ से भी जो है वो वहां से इमदाद यानी कि जो डोनेशंस थी या जो सामान था रेस्क्यू का सामान और उनके लोग डॉक्टर्स वगैरह जो हैं वो पहुंचना शुरू हो गए हैं टर्की। पाकिस्तान की तरफ से कहा गया है कि हम इस मुश्किल घड़ी में यानी कि टर्की के ऊपर जो सख्त प्रॉब्लम्स आई हैं उसमें हम टर्की के लोगों के साथ खड़े हैं और इसके लिए जी जो है वो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब और उनके साथ साथ फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि वो टर्की का विजिट करेंगे और वहां पर जाके उनके प्रेसिडेंट से भी उनकी मुलाकात होगी और ये सिर्फ इसलिए है ताकि वहां पे ये बताया जा सके कि जी हम बहुत हमदर्दी रखते हैं और हम हर सूरत हाल में या हर तरह की प्रॉब्लम में टर्की के साथ खड़े हैं। लेकिन बात सारी ये है कि ये पैसा जाया करने के बजाय जो आप ट्रैवलिंग करेंगे यहाँ से टर्की तक के लिए, अगर यही पैसा बचाकर उन लोगों को दे दिया जाता या कोई मजीद सामान उनको भेजा जाता तो बेहतर होता। अब वहां का विजिट अगर दोनों करेंगे तो जाहिर है कि वो प्रोटोकॉल भी होगा, खर्चा भी होगा, जहाज का भी जाहिर है फ्यूल तो पड़ता ही है ना, या आप मतलब फूंक मार के चला लेंगे वो जैसे मुल्ला होते हैं ना, फूंक मारो तो बाइक चल जाएगी, पेट्रोल नहीं डालना पड़ेगा। अगर इस किस्म की कोई तरकीब आप करने लगे तो और बात है, लेकिन ये अगर आप फूंक से नहीं चला रहे, आप पेट्रोल से चला रहे हैं, फ्यूल डालना पड़ रहा है आपको जहाज में, तो फिर मेरा ख्याल है कि इन दोनों को नहीं जाना चाहिए और वही पैसा बचा के या तो वहां पे लोगों के लिए कोई सामान भेज दें टर्की में या फिर अपने ही लोगों की कोई मदद कर दीजिए कि यहाँ पर भी लोगों को जो है वो खाने को नहीं मिल रहा और लोगों के पास जॉब्स नहीं है और लोग परेशान हैं। लेकिन बहरहाल जाहिर है हमारे जो लीडर हैं उन्हें तो बस एक मौका चाहिए कि जैसे ही जरा सा कुछ हो या जरा सा क्या मतलब उनको कोई मौका मिले और वो जल्दी से जल्दी दूसरी कंट्री में पहुंच जाए। पाकिस्तान में तो कम ही टिकते हैं, खास तौर पे हमारे फॉरेन मिनिस्टर। लेकिन खैर इस वक्त ये फिर उन्होंने कहा है, लेकिन साथ साथ एक न्यूज और भी चल रही है, मुझे नहीं मालूम कि वो कहां तक ठीक है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान ने एयर स्पेस नहीं दी भारत को जब वो जाना चाह रहे थे टर्की, अपना जो रेस्क्यू टीम वहां पहुंचाना चाह रहे थे और सामान लेके जाना चाह रहे थे, तो उसके लिए भारत को जो है पाकिस्तान ने एयर स्पेस नहीं दी। अगर तो ये न्यूज ठीक है तो बड़े अफसोस की बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए था क्योंकि इस वक्त मुश्किल घड़ी में भारत जो है वो मदद करना चाह रहा है और कर रहे हैं। तो उसमें टर्की की तो उसमें पाकिस्तान को भी मदद करनी चाहिए थी और एयर स्पेस देनी चाहिए थी। लेकिन अगर तुर्की के अंदर ज़लज़ला आया और 7.9 रेटिंग का जो है उसने काफ़ी तुर्की में तबाहकारियाँ की। उसमें देखने में आया हमारी नेबर कंट्री भारत की तरफ से जो है उनकी असिस्टेंस के तौर पे एक मेडिकल टीम जो है वो तुर्की रवाना की गई है, जबकि मेडिसिन्स वगैरह भी जो है वो तुर्की भेजी जा रही हैं। अगर देखा जाए तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट की तरफ से उस तरह की कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आई। जो बात अफ़गानिस्तान की हो, बात बांग्लादेश की हो या बात किसी भी कंट्री की हो, श्रीलंका की बात हो, तुर्की की बात हो, भारत हमेशा सर फहरिस्त रहता है मदद करने के अंदर। क्या इंसानियत का जो मतलब सबक है वो हमें भारत से सीखने की ज़रूरत है। हम क्यों इतना पीछे रह गए हैं कि हम किसी भी कंट्री की मदद तो हम ले लेते हैं, इमदाद की अपील हर कंट्री से करते हैं, लेकिन जब हमारे एंड पे मदद करने की बारी आती है तो हमारे ऑफिशियल्स की तरफ से इस तरह की कोई स्टेटमेंट जो है वो सुनने को नहीं मिलती है। खामोश